70,000 خوش نصیب لوگ کون ہوں گے جو بغیر حساب کتاب، بغیر میزان، بغیر سوال جواب اور بغیر پل صراط پر رکے سیدھے جنت کے دروازے سے داخل ہوں گے؟ نہ کوئی سوال، نہ کوئی صفائی، نہ کوئی رکاوٹ، صرف اللہ کی خاص رحمت اور براہ راست جنت کا پروانہ۔ سوال یہ ہے، یہ لوگ کون ہوں گے؟ ایسا کیا کرتے تھے وہ دنیا میں؟ کیا ان کی عبادتیں خاص تھیں؟ کیا ان کے دلوں میں کوئی نایاب وفا 29 چھپا ہوا تھا؟ کیا ہم بھی ان خوش نصیبوں میں شامل ہو سکتے ہیں؟ اور وہ جنت کا کون سا دروازہ ہوگا جو صرف انہی کے لیے کھولا 40 جائے گا؟ ایک ایسا دروازہ جو عام جنتیوں کے لیے بھی خاص ہے، لیکن ان 70,000 کے لیے ایک الگ مقام رکھتا ہے۔ اس میں آئیے آج کی اس ایمان افروز ویڈیو میں ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں تلاش کریں گے ان خوش نصیبوں کی صفات جن کے لیے پل صراط بھی معاف، میزان بھی معاف اور جنت سیدھی ان کے استقبال کو تیار۔ ناظرین، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ قیامت دن جب ہر شخص حساب کے خوف سے کانپ رہا ہوگا، جب پل صراط کے نیچے جہنم ایک 16 کی آگ بھڑک رہی ہوگی، جب فرشتے جنہیں 1:20 کسی حساب کتاب کی ضرورت ہی نہیں ہوگی 1:22 وہاں نہ رکیں گے، نہ تولے جائیں گے، نہ کسی 1:25 سوال کا سامنا کریں گے، وہاں اپنی قبروں سے 1:25 اٹھیں گے اور سیدھے جنت کی طرف روانہ ہو 1:31 جائیں گے، گویا اللہ تعالیٰ نے انہیں خاص 1:34 کر کے چنا ہو۔ آخر وہ کون لوگ ہوں گے کرنے والے تھے؟ کیا ان کے دل خوف سے خالی 1:51 تھے، یا ان کی عبادت کچھ ایسی تھی جو باقیوں سے مختلف تھی؟ آج ہم ان 70,058 خوش نصیبوں کا ذکر کریں گے جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بغیر 2-4 حساب کے جنت میں جانے کی بشارت دی، اور دو ساتھ یہ بھی جانیں گے کیا ہم بھی ان میں شامل ہوں گے؟ 2:10 سکتے ہیں۔ ناظرین، قیامت کا دن خاموش 2:14 بھیانک اور ہر طرف خوف کا عالم، انسانوں کا 2:18 ہجوم میدان محشر میں کھڑا ہے، ہر آنکھ سہمی 2:21 ہوئی، ہر دل دھڑکا رہا ہے۔ یہ وہ دن ہے جب 2:24 دنیا کے تمام بادشاہ، فقیر، ظالم اور 27 مظلوم، عالم اور جاہل سب برابر صفوں میں 2:31 کھڑے ہوں گے۔ کوئی رتبہ، کوئی تعلق، کوئی دولت کسی کے کام نہ آئے گی، ہر شخص صرف 2:37 اور صرف اپنے اعمال کے ساتھ تنہا کھڑا ہوگا۔ اور پھر ایک ایسا مرحلہ آئے گا جسے سن کر دل دہل جائے، جسم کانپنے لگے۔ پلے 2:47 صراط۔ اللہ تعالیٰ سورہ مریم کی آیت نمبر 51 اور 72 میں فرماتے ہیں، اور تم میں سے ہر شخص جہنم پر وارد ہونے والا ہے۔ یہ 57 تمہارے رب کے ذمے پکا ہی فیصلہ ہے۔ 3 پھر ہم ان لوگوں کو نجات دیں گے جو 3:2 متقی ہوں گے، اور ظالموں کو اسی میں 3:5 گھٹنوں کے بل چھوڑ دیں گے۔ یہ آیات واضح کر 3:9 رہی ہے کہ ہر انسان چاہے وہ کیسا بھی ہو پلے صراط پر سے گزرے گا۔ صرف وہی 3:16 کامیاب ہوں گے جنہوں نے دنیا میں تقویٰ 3:18 اختیار کیا ہوگا، جو اللہ سے ڈرتے، اور 3:21 اس کی حدود کا پاس رکھتے تھے۔ باقیوں کے لیے 3:24 یہ پل ایک ابدی انجام کا دروازہ ہوگا۔ 3:28 حدیث میں روایت ہے کہ نبی کریم 3:30 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پل 3:34 صراط بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے 3:38 زیادہ تیز ہوگا، یعنی اس پر سے گزرنا 3:41 انسان کی زندگی کا سب سے مشکل مرحلہ 3:44 ہوگا۔ یہ پل جہنم کے اوپر قائم ہوگا۔ 3:47 پل کے نیچے جہنم کی آگ ہوگی جو بھڑک 3:50 رہی ہوگی، اور پل کے کناروں پر خاردار 3:54 کانٹے اور گرفت کرنے والے آکڑے ہوں گے۔ 3:56 ذرا تصور کیجئے، ایک پل جو اتنا باریک ہو 4:1 کہ اس پر قدم رکھنے کا خیال ہی ہولناک، اور 4:4 اتنا تیز کہ اگر انسان کا پاؤں ذرا بھی لڑکھڑائے تو وہ پل نہیں ایک تلوار بن جائے، 4:11 کاٹ کر جہنم میں گرا دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4:19 لوگوں کو ان کے اعمال کے مطابق پل صراط پر سے گزارا جائے گا، کچھ بجلی کی طرح 4 پوائنٹ گزریں گے، کچھ ہوا کی مانند، کچھ گھوڑوں 4 بجے کی تیزی سے، کچھ پیدل، کچھ رینگتے ہوئے، اور 4:32 کچھ گھسیٹ کر، اور کچھ لوگ کانٹوں میں پھنس 4:35 جائیں گے، پھر جہنم میں جا گریں گے۔ یہ 4:39 حدیث دل دہلا دینے والی ہے۔
सोचिए क़यामत के दिन हर इंसान की रफ्तार उसके दुनिया के आमाल के मुताबिक होगी। जिन्होंने जिंदगी तकवा और ईमान के साथ गुजारी होगी वो रोशनी की रफ्तार से गुजर जाएंगे, लेकिन जिनके आमाल कमजोर होंगे उनके कदम लड़खड़ा जाएंगे। नाजरीन, जरा इस मंजर का 5-2 तसव्वुर कीजिए। नीचे दहकती हुई आग जिससे 5 बजे 2 मिनट शोले उठ रहे हैं। सन्नाटा है या सिर्फ फरिश्तों की गरजदार सदाएं? अंधेरे का राज है और हर तरफ लोगों के कराहने, चीखने और 5 बजे 18 मिनट मदद की पुकार की आवाजें। कुछ चेहरे रोशन 5 बजे 21 मिनट होंगे जिन्हें फरिश्ते सलाम करते हुए गुजर रहे होंगे, और कुछ ऐसे जिनके चेहरे स्याह 5 बजे 27 मिनट होंगे जिन्हें फरिश्ते पीछे से धक्का देकर गिरा रहे होंगे। हदीस के मुताबिक जब लोग सिरात पर से गुजर रहे होंगे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुल के या अब सलामती दे रसूलुल्लाह खुद भी अपनी 546 उम्मत के लिए दुआ कर रहे हैं, और उनके 549 सामने उनके मानने वाले इस खतरनाक पुल पर 552 से गुजर रहे हैं। कुछ कामयाबी से गुजर 555 जाएंगे, कुछ दरमियान में फंस जाएंगे और 558 कुछ दोज़ख में जा गिरेंगे। उस दिन कोई नबी 630, कोई वली, कोई इमाम किसी को नहीं बचा सकेगा सिवाय उसके जिस पर अल्लाह ताला की रहमत C10 होगी। वो पुल जो नेक लोगों के लिए नजात का C13 जरिया है, गुनहगारों के लिए सजा का आलाद C16 बन जाएगा। वो फिसलेंगे, जख्मी होंगे और C20 अंजाम जहन्नुम होगा। हदीस से यह भी मालूम C24 होता है कि कुछ लोग इस पुल पर कांटों में C27 फंसकर नीचे गिर जाएंगे। C29 लेकिन अल्लाह की रहमत से कुछ को फरिश्ते C33 फिर से खींच कर निकाल देंगे। शफात के जरिए C36 कुछ लोगों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि C40 वसल्लम की शफात के तफ़ैल जहन्नुम से निकाला जाएगा। लेकिन वो मंजर किस कदर खौफनाक होगा। 649 जहाँ इंसानों की किस्मत का उनके आमाल और 6 आमाल पर अल्लाह की रहमत के दरमियान एक तेज धार लाइन 655 पर फैसला हो रहा होगा। पुल सिरात के 658 किनारे खड़े फरिश्ते एक एक इंसान का नाम 7-2 पुकारते जाएंगे। कुछ के चेहरे सफ़ेद होंगे 7-6, कुछ सियाह, कुछ के हाथ में नूर होगा जो उनके 7-11 रास्ते को रोशन करेगा। कुछ अंधेरे में 7-14 भटकेंगे। ये वो लोग होंगे जो दुनिया में 7-16 नमाज से गाफिल थे, जुल्म करते थे, वालिदैन 7-20 की नाफरमानी किया करते थे। जब मैदान महशर 7-23 का फैसला मुकम्मल हो जाएगा और जन्नत व 7-25 दोजख सामने होंगी, तब पुल सिरात को कायम 7-39 किया जाएगा जो पैरा 7-32 मैदान महशर से जन्नत के दरमियान तना होगा। 7-35 लेकिन उसके नीचे दोजख की आग लगी होगी। गोया 7-40 इंसान को जन्नत तक पहुंचने के लिए दोजख के 7-45 ऊपर से गुजरना होगा, और सिर्फ वही कामयाब 7-50 होगा जिसके आमाल इस काबिल होंगे कि वो 7-50 अल्लाह ताला के हुक्म से, उसकी रहमत से, और 7-95 अपने नेक आमाल की रोशनी से पुल पर तवाज़ुन 7-95 बरकरार करार रख सके। बाज़ रिवायतों में आता 7-50-49 है कि इस पुल पर अमानत व रिश्तेदारियाँ 8-2 खड़ी होंगी। यानी जो शख्स दुनिया में 8-55 खयानत करता था, जो अपने रिश्तेदारों से कदे 8-55-9 ताल्लुक़ करता था, उन्हें ये चीज़ें पुल पर 8-55-12 रोक देंगी। जैसे ही वह कदम रखेगा यह चीज़ें 8-16 उसका दामन पकड़ लेंगी और उसे नीचे गिरा 8-19 देंगी। नासरीन, अब बात करते हैं उन 8-23 खुशकिस्मत लोगों की जो बगैर हिसाब किताब 8-26 के जन्नत में जाएंगे। एक दिन रसूलुल्लाह 8-30 सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को 8-33 एक ऐसी खुशखबरी दी जो ईमान वालों के दिल 8-36 को रोशनी, यकीन और उम्मीद से भर देने वाली 8-39 है। हज़रत उकाशा बिन महसन रज़ियल्लाहु अन्हु से 8-43 रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8-32 वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के 70,000 लोग बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल 8-50 होंगे। यह सुनकर सहाबा हैरान रह गए और 8-50 इसका सबब जानने की ख्वाहिश की। तब आप 9 में 1 सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उन 9 में 4 लोगों की 4 नुमाया सिफात होंगी। 4 9 में 7 हैरान वतून 9 में कहा नहीं करवाते, यानी दाग लगाकर इलाज 9 में 12 करवाना,
इसमें गर्म लोहे से जिस्म पर दाग 9 में 15 लगाकर बीमारी का इलाज किया जाता था। यह 9 में 19 अमल ना सिर्फ जिस्मानी तकलीफ देह होता था 9-21 बल्कि इंसान को दूसरों पर निर्भर रहने का 9-24 आदी भी बना देता था। अगरचे शरीयत ने इसे 9 में 27 हराम करार नहीं दिया, लेकिन नबी करीम उन 9 में 30 लोगों को सबसे आला मुकाम का मुस्तहब करार 9 में 33 दिया जो ऐसे इलाज से इज्तनाब करते हैं। यह 9 में 36 महज इलाज से परहेज नहीं बल्कि रूहानी खुददारी और तवक्कुल अल्लाह की इंतहा है। 9 में 42 यह वो लोग हैं जो बीमारी को महज जिस्मानी 9 में 44 मसला नहीं समझते बल्कि उसे अपने रब की तरफ 9 में 48 से एक आजमाइश एक इम्तिहान तसव्वुर करते हैं। उनके दिल में पुख्ता यकीन होता है कि अगर 9 में 54 अल्लाह चाहे तो बगैर किसी दवा, बगैर किसी 9 में 58 काई, बगैर किसी तबीब के भी शिफा दे सकता एक हुआ है। और अगर वह ना चाहे तो दुनिया भर के 10-5 माहिर डॉक्टर और इलाज भी बेजार रहेंगे। यही 10-9 वह बातिनी ताकत है जो इन अफराद को आम 10-12 इंसानों से मुमताज करती है। वह सिर्फ 10-15 जिस्मानी तौर पर मजबूत नहीं होते बल्कि 10-18 उनकी रूहानी दुनिया भी बड़ी मजबूत, 10-20 पुरसुकून और अल्लाह पर कामिल एतमाद से भरी, 10-23 होती है। ईमान की पुख्तगी उनको उन खास 10-27 बंदों में शामिल करती है जिनके लिए क़यामत 10-30 के दिन ना कोई हिसाब होगा, ना कोई बास पूरा, सिर्फ खुशखबरी, इस्तकबाल और बिला ताखीर 10-37 जन्नत का दरवाज़ा जिसमें से वह आराम से और 10-40 हमेशा के लिए जन्नत में चले जाएंगे। ऐसे 10-44 लोगों की सफ़ में आना चाहते हैं तो आज से 10-47 अल्लाह को ही अपना शाफी माने और दुनिया के 10-50 हर सहारे से पहले और बढ़कर रब पर तवक्कुल 10-54 करना सीखें। नंबर 2, ला यस्तरकून, वो 10-59 झाड़ फूंक नहीं करवाते हैं, यानी दम वगैरह 10-54 नहीं करवाते। यह वह अजीम बंदे होते हैं 10-5 जिन्होंने अपने दिल को मुकम्मल तौर पर 11-7 अल्लाह के सामने झुका दिया होता है। वह ना 11-10 खुद झाड़ फूंक करवाते हैं, ना किसी से इसका 11-13 मुतालिबा करते हैं और ना ही किसी ज़ाहरी 11-15 रूहानी सहारे के पीछे भागते हैं। अगरचे दम 11-19 करना, कुरान की आयत पढ़कर फूंक मारना और 11-22 रुकिया शरैया जैसे आमाल सुन्नत नबी से 11-26 साबित हैं और जायज़ हैं, लेकिन ये लोग अपने 11-29 बुलंद रूहानी मकाम की वजह से इसे भी तर्क 11-32 कर देते हैं, क्योंकि उनके नज़दीक किसी से 11-36 यह कहना कि मेरे लिए दम कर दो, यह भी 11-39 तवक्कुल में कमी और अल्लाह पर मुकम्मल एतमाद 11-42 के मुनाफी है। ये लोग सिर्फ दवा या रूहानी इलाज से नहीं बल्कि हर किस्म के 11-48 अल्लाह पर इंसार से दिल को आज़ाद रखते हैं। 52 यह वह बंदे हैं जो रूहानी तौर पर मुकम्मल 11-55 खुद मुख्तार होते हैं। उनके दिल में कोई 11-58 खला नहीं होता जिसे तावीज़, दम या झाड़ 12-2 फूंक से पुर किया जाए। उनका दिल पहले ही 12-5 रब के कुर्ब से लबरेज होता है। उनका ईमान 12-9, उनकी उम्मीद, उनकी हिफाजत और उनकी शिफा सब 12-13 कुछ अल्लाह के इख्तियार पर छोड़ दिया जाता है। 12-15 उनका अमल हमें यह सिखाता है कि जायज़ 12-18 होना और बेहतर होना दो अलग बातें हैं। दम 12-23 करना जायज़ है, लेकिन अल्लाह पर ऐसा कामिल 12-26 तवक्कुल रखना कि बंदा खुद ही कुरान पढ़कर 12-29 अपने लिए दुआ करे और दूसरों से तवक्को ना 12-31 रखे, ये ईमान का आला तरीन सर है। नंबर 3 12-37 वला यून, वह बदशगुनी नहीं लेते। ज़माना 12-41 जाहिलियत में बदशगुनी का आलम यह था कि लोग अपने रोज़मर्रा फैसले किसी परिंदे की 12-46 परवाज़, किसी ख्वाब या किसी मामूली मंजर की 12-39 बुनियाद पर करते। अगर परिंदा दाई तरफ उड़े 12-52 जाए तो नेक फाल, और अगर बाई तरफ जाए तो 12-55 बुरा शगुन। अगर कोई काली बिल्ली रास्ता 12-39 काट जाए तो सफ़र मनसूख कर देते। किसी बीमार 13-3 या कमजोर को देख लिया तो फौरन वापस लौट 13-6 जाते, क्योंकि बदशगुनी लग गई है। मगर वो 70,000
खुश नसीब जिन्हें बगैर हिसाब किताब तेरा तेरा जन्नत अता की जाएगी। वह ऐसे तमाम तवामात 17 और अफसानवी नज़रियात से मुकम्मल तौर पर बाक 13-20 होते हैं। उनका अकीदा किसी खारिजी इशारे 13-24 या ख्याली है। वो जानते हैं कि अगर खालिक ना चाहे तो कोई काली बिल्ली नुकसान नहीं दे सकती, कोई दिन बुरा नहीं हो सकता, कोई नुसरत दिल पर सवार नहीं हो सकती और कोई नज़र उनके नसीब को नहीं बदल सकती। ये लोग अकीदे में इतने साफ, सच्चे और तवक्कुल वाले होते हैं कि वह ज़ुबान से भी ऐसे अल्फाज नहीं निकालते जो अल्लाह की कुदरत पर शक या वसे का इजहार हो। जैसे किस्मत खराब है, नज़र लग गई है, काले कपड़े पहन लिए, नुसरत आ गई, आज मंगल है, काम मत करो। इन सब बातों को वह जाहिलाना और शर्क आद समझते हैं, क्योंकि यह सब अल्लाह की तौहीद और तकदीर पर ईमान को मजरू करते हैं। ईमान के ये पाकीज़ा लोग जानते हैं कि ना दिन बुरे होते हैं, ना महीने, ना जानवर, ना रंग, सब कुछ अल्लाह की रज़ा से होता है। ये लोग अंदर से आज़ाद होते हैं हर तरह की फ़िक्री गुलामी तवाम परस्ती से। ये वह लोग हैं जो तवक्कुल और तौहीद के आला तरीन दर्जे पर फाइज होते हैं। उनका ईमान एक चट्टान की मानिंद होता है जिस पर ना कोई वहम रस, ना कोई मुआशरती दबाव। अगर आप भी इन 14 खुश नसीबों में शामिल होना चाहते हैं तो 14 अपने दिल से बदशगुनी के हर नक्श को मिटा 14 टाले और रब पर ऐसा यकीन कायम करे जो ना 14 किसी दिन से लजे, ना किसी नज़र से कांपे, ना किसी खबर से डरे, क्योंकि जो अल्लाह पर 14 ईमान रखता है वो हर खौफ से आज़ाद होता है। 15 नंबर 4 वरब तवक्कलून, वो अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा करते हैं। यह चौथी और आखिरी सिफत वो बुनियाद है जिस पर 15-14 तमाम बाकी दीन की सिफात कामे होती है। यह 15-17 वो कामिल यकीन है नाज़रीन, जब रसूलुल्लाह 15-21 सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में यह 15-24 रूह को लर्जा देने वाली बशारत सुनाई गई। जब 15-27 आपने फरमाया, मेरी उम्मत में से 70,000 15-21 अफराद बगैर हिसाब किताब के जन्नत में 15-34 दाखिल होंगे। यह अल्फाज सहाबा के दिलों में 15-29 उम्मीद की शमा बनकर रोशन हो गए। जब आपने 15-42 सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यह बात फरमाई तो 15-45 हज़रत उकाशा बिन महसन 15-47 रज़ल्लाहु अन्हु खड़े होकर अर्ज किया, या रसूल 15-51 अल्लाह दुआ करें कि मैं उनमें से हूँ, तो 15-54 फरदें में से हो। फिर एक और सहाबी खड़े हुए और 1612 यही बात अर्ज की तो आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, उकाशा तुम पर सबकत ले गए। ये जुमला फ़कत बशारत ना था बल्कि हज़रत उकाशा के रूहानी मकाम, उनकी हाजिर दिमागी और ईमान की सिद्दत का ऐलान था। यहाँ रुक कर दिल लरज़ अपने दीन का ज़्यादा, क्या महज चंद लम्हों की ताख़ीर एक साथ अजीम मर्तबे से महरूमी का सबब बन सकती है? क्या नेकी का दरवाज़ा हमेशा खुला नहीं रहता? मगर ये वाक़या हमें जता देता है कि 16-30 बाज़ मौके ज़िंदगी में सिर्फ एक बार आते, 33 है जो उसे पहचान ले वही कामयाब होता है। जोड़े 37 हज़रत उकाशा का ये कदम सिर्फ जल्दबाजी ना, सिर्फ 40 था, ये रूहानी बसीरत का फैसला था। 33 हैं, उन्होंने मौके को पहचाना, झपट्टा और रब की 16-47 रहमत की तरफ सबकत ली। ये वाक़या आज हमें 16-50 सबक देता है कि ईमान के द्वार में देर 33 करने वाले अक्सर पछताते हैं। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब से दुआ 35-49 की कि ये तादाद बढ़ा दी जाए तो अल्लाह ताला ने इस उम्मत को वो इनाम अता फरमाया 33-6 जो किसी और मुबारका में आता है कि अल्लाह ताला ने 17-12 फरमाया, 17-13 हर 1000 के साथ 70,000 और दे दिए जाएंगे। 17-18 गोया हर ज़रो खुशनसीब अफराद के साथ 70,000। 17-22 मजीद अफराद शामिल किए जाएंगे। अगर इस 17-25 हिसाब से शुमार किया जाए तो इब्तिदाई 17-18 हज़ार के साथ मिलकर ये तादाद 4,90,18 लाख से तजावुज़ कर जाती है। यानी तकरीबन 5-17-34 करोड़ अफराद बगैर किसी हिसाब के सीधे 17-38 जन्नत में दाखिल होंगे।
یہ صرف عد نہیں 1742، یہ اس امت پر اللہ تعالیٰ کا خاص کرم، ایسی امت جس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین ہے، جن کی دعائیں رب العالمین فوراً سنتا ہے، اور جس کی امت کے لیے اللہ خود فرماتا ہے اللہ تمہیں اعلیٰ معاف کرنے والا ہے۔ ایسی امت کے افراد اگر 18/4 اخلاص، توکل اور ایمان کی کامل صفات کے 18 ساتھ جیتے ہیں تو ان کے لیے جنت کی راہیں 18-10 آسان کر دی جاتی ہے۔ جنت کا خاص دروازہ 18-15 اور بغیر حساب کے داخل ہونے والے 70,000 18-17 خوش نصیب جنت کا دروازہ باب جنت کبن 18-22 جنت کا دایا دروازہ نبی کریم 18-25 جنت میں دائیں طرف کے دروازے سے داخل 18-21 ہوں گے اور وہ سب کے سب اس میں داخل ہوں گے 18-33 لبک 18-36 باقی لوگ یعنی دیگر اہل جنت عام 18-39 دروازوں سے داخل کیے جائیں گے۔ یہ جنت کا 18-43 خاص دروازہ ہے جس سے صرف وہی 7,18,46 خوش نصیب افراد داخل ہوں گے جو بغیر حساب 18-50 وقباب کے جنت میں جائیں گے۔ دیگر جنتی 18-53 حضرات مختلف دروازوں سے ان کے اعمال کے 18-56 لحاظ سے داخل ہوں گے جیسے نماز، روزہ، صدقہ وغیرہ، مگر یہ گروہ براہ راست اور 19/4 خصوصی اجاز کے ساتھ داخل کیا جائے گا۔ اس 19/8 دروازے سے داخل ہونے والے لوگ نہایت عزت بوقار، روشنی اور خوشی کے ساتھ بغیر 19-15 کسی رکاوٹ کے داخل ہوں گے۔ یہ لوگ 19-18 اندھیرے میں چمکتے ستاروں کی مانند 19-20 ہوں گے، ان کے چہرے نور سے چمک رہے ہوں گے۔ 19-24 فرشتے ان کا استقبال کریں گے، نہ کوئی 27 سوال، نہ کوئی حساب، بس رحمت الہی سے بلا رکاوٹ داخلہ۔ ان کے دل میں نہ خوف ہوگا۔ 19-35 نہ غم، اللہ تعالیٰ خود فرمائے گا جاؤ تم پر۔ 19-40 نہ کوئی حساب ہے نہ کوئی گرفت۔ پیارے دوستوں، آج غیر اللہ کے در پر جھکیں گے نہ کسی 19-48 توغامات کو عقیدہ بنائیں گے بلکہ صرف اسی رب پر توکل کریں گے جس نے آسمان بلند کیا اور زمین بچھائی۔ 57 دعا اے اللہ ہمیں اپنی رحمت کی طرف سبقت لے جانے والوں میں شامل فرما دے اور ان 51 خوش نصیبوں میں سے بنا دے جو بغیر حساب اور بغیر عذاب کے جنت میں داخل ہو۔ اے اللہ ہمارے لیے جنت کے دائیں دروازے 20-13 کھول دے، ہمارے چہروں کو نورانی بنا، 20-16 ہمارے دلوں کو پاکیزہ بنا اور ہمارے قدموں 20-20 کو اپنے راستے میں نور بنا دے۔ اے سب سے 20-24 زیادہ رحم کرنے والے،